Hello dear students, good morning. In previous lecture we were discussing about the application of Gauss law. Again I am going to repeat what is Gauss law and its application. So Gauss law application. We know the mathematical expression of Gauss law is given as the phi equals to surface integral E dot dA equals to Q in by epsilon naught, Q in by epsilon naught. So by using this particular Gauss law's expression, we have to calculate electric field. The next application, second application, we have to calculate calculation of electric field. Calculation of electric field due to symmetrically charged thin infinite seat. Let us consider a seat which is infinitely charged symmetrically by a positive charge density. Suppose the charge density of this particular seat is lambda coulomb per meter square, and we have to calculate electric field due to this particular seat. So if we are going to use Gauss law, so we have to consider a Gaussian surface. And we know this seat is a thin seat. It means we have to consider only one side of this seat. So we have to consider a Gaussian surface. For that particular surface, I am going to consider a cylindrical seat. Okay, so this particular cylinder acts as a Gaussian surface. Okay, in this particular concept, we have to calculate a flux enclosed by this particular Gaussian surface, and by which we will calculate electric field. Okay, so in this particular Gaussian surface, there are three surfaces. The surface first, I am going to notation surface second, and the curved surface, which is surface number third. Okay, again I am similar to previous. We have to calculate phi equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, and we know phi equals to E dot A. It means we have to calculate the angle between area vector and electric field vector. Okay, so the area vector for this particular function is like this. This is the direction of area vector. We know for closed surface objects there are the direction of area vector is radially outward. So similar to like this, the direction of area vector, and we know the charge density is positive. So electric field lines originate from positive charge, so it will be the direction of electric field also. Whereas for this curved surface, the electric field line direction is like this, and the area vector and electric field are mutually perpendicular. So for third particular surface, the flux is 0 because y0, phi 3 equals to 0. Why? Because theta equals to 90. So cos 90 is 0. We have to calculate phi 1 as well as phi 2, and we know phi and phi. Suppose the cross section area is A. Is cross section area of Gaussian surface. Okay, see, this is the cross section area of Gaussian surface. So we have to calculate net phi equals to phi 1 plus phi 2. So by using this particular, we can calculate phi 1 and phi 2, both are similar, so I can multiply it by 2. So surface integral E dot dA equals to Q in by epsilon naught. Similar like Q in by epsilon naught. We know ट्वाइस, देखो बेटा मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक सरफेस ये वाला है और एक सरफेस ये वाला है, दोनों के लिए सिमेट्रिक. अगर थीटा 0 है और कोस 0 कितना 1, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.
or we can add separately by phi 1 and phi 2, both are same. Okay, so E dot dA we have to calculate E, which is constant at the particular surface of A and surface number 1 or 2, and we have to integrate dA. We have to integrate dA, which is equals to Q in by epsilon naught. Acha, Q in by epsilon naught, we have to, if we are going to we know that charge density is sigma for 2D object. So Q in by total area A equals to Q in by A equals to sigma. So Q in equals to here sigma into A, sigma into A. बेटा charge density Q in by A, तो Q जो होगा बेटा वो sigma into charge density into area. So charge density sigma into area by epsilon naught. Now we have to integrate the area, and we know both areas are A and A, so 2A, and I had multiplied by 2, so E into area is A equals to sigma A by epsilon naught. A से A कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आपका जो फाई जो आएगा वो आएगा E से, और E से आगे मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ से एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आएगा बेटा आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, which is constant, sigma upon 2 epsilon naught. अगर मैं बात करता हूँ तो r कैप की डायरेक्शन दे देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा. इट मींस आपका जो E आया इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो बेटा सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught आया. इट मींस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट मींस इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट, then we will get electric field constant at any point. We know what do you mean by infinity? Infinity, it's a relative term. Suppose I am going to consider this particular blackboard as a seat, then our point is at suppose the point is at a distance of 1 mm. Suppose the distance is 1 mm. So 1 mm is so too much less as compared to the area of this particular seat. So we can consider 2 mm is negligibly, or we can say as compared to 2 mm, this particular board will act as a infinitely charged seat. So electric field is constant sigma upon 2 epsilon naught, constant which is sigma upon 2 epsilon naught. Okay, the next application is calculation of electric field due to symmetrically charged thin spherical cell. Symmetrically charged thin spherical cells. This is the third application of Gauss law. Calculation of electric field due to symmetrically charged thin spherical cell. Suppose our thin spherical cell is like this. This is our thin spherical cell. Suppose the charge density of spherical cell is sigma coulomb per मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. इट मींस आपका ये थिन स्फेरिकल सेल है. थिन का मतलब स्फेरिकल सेल, इट मींस बेटा अंदर से ये होलो है, होलो स्फेरिकल सेल भी बोल सकता हूँ, थिन स्फेरिकल सेल है. तो आपको क्या करना है कि आपने इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया है इस स्फेरिकल सेल को. सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल सेल इज r. सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. सो फर्स्ट आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, द केस 1 इज E इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. इट मींस आउटसाइड मुझे कैलकुलेट करना है, तो मेरा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, इस स्फेरिकल सेल से बाहर होगा. इट मींस मैं बोल सकता हूं कि r जो होगा, r शुड बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सेल. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस. सी दिस इज द आवर स्फेरिकल सेल एंड दिस वन इज गॉसियन सरफेस. Okay, this is capital R and this is small r. Charge density sigma coulomb per meter. Okay, by using Gauss law, we know flux E dot dA, surface integral E dot dA equals to Q in by epsilon naught. Okay, if we are going to consider this one particular Gaussian surface, so our spherical cell is enclosed by this particular Gaussian surface. So E dot surface integral dA equals to Q in by epsilon naught. Okay, dA it means the area of Gaussian surface, and we know the total surface area of any spherical cell is, or of any sphere is 4 pi r square. So E
इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यू नो आर बेटा छोटा आर का मतलब है अपना जो गॉसियन सरफेस है उसके बात कर रहा हूं और उसी का एरिया होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू इन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, तो चार्ज डेंसिटी तो बेटा सिग्मा है, सरफेस एरिया किसका, जो अपना गॉसियन सरफेस नहीं था उसका, नहीं गॉसियन सरफेस से तो फ्लक्स लिंक कर रहा, हमारा जो सरफेस एरिया होगा जिस सरफेस एरिया पे अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके सो दिस इज द Q in, value of Q in by epsilon naught. Okay, let's see 4 pi से 4 pi cancel out, 4 pi से 4 pi cancel out, so we will get E electric field equals to sigma r square by epsilon naught or r square or r cap. See the direction of electric field in the direction of r vector, it means r vector is radially outward, so the direction of electric field also sigma r square upon epsilon naught r square, sigma r square upon epsilon naught r square. Now we have to calculate electric field inside the spherical cell. Second, inside spherical cell, inside cell it means inside cell it means our r is less than capital R, our r is less than capital R. Suppose this is our charged spherical cell, charge density sigma coulomb per meter square, and if I am going to consider a Gaussian surface inside the spherical cell, Gaussian surface inside the spherical cell of radius r, now by using Gauss law, now using by Gauss law, phi equals to surface integral E dot dA equals to Q in by epsilon naught, Q in by epsilon naught. See, E dot dA, dA it means the surface integral area of dA should be equals to Q in by epsilon naught. Okay, dA is 4 pi r square, so E into 4 pi r square इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सी अगर ये मेरा होलो स्पेरिकल सेल है, सपोज करके ये रूम को मैं अगर ट्रीट करता हूं किसकी तरह, स्पेरिकल की सेल की तरह, तो अगर रूम से बाहर मैंने स्पेरिकल सेल कंसीडर किया मेरा गॉसियन सेल, तो गॉसियन सेल रूम टोटली एनक्लोज हो जाएगा रूम। अगर ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में क्या करना है कि सपोज करके इस रूम के अंदर मुझे गॉसियन सरफेस, मान लो कि ये मैंने गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई पार्ट आया क्या स्पेरिकल सेल का, नहीं सर, तो उसकी वजह से इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ। इट मींस आपका क्यू इन कितना हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप लिख दो कि सर क्यू इन इज जीरो, क्यू इन इज जीरो, क्योंकि बेटा मैंने ये जो कंसीडर किया है ये होलो है, और होलो इट मींस इसका जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे। अगर मैं उस सिलेंड्रिकल स्पेरिकल सेल के अंदर में कोई स्फीयर कंसीडर करता हूं गॉसियन सरफेस की तरह, तो उससे एनक्लोज चार्ज कितना, जीरो। अगर चार्ज जीरो तो उसकी वजह से कौन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, सो ई इज जीरो। इट मींस आपका जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर आपका जो चार्ज होगा वो जीरो हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। सपोज वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ई वर्सेस आर का अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, मान लो ये आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आप बोलोगे सर इनसाइड तो जीरो, इनसाइड तो जीरो, अच्छा बाद में कितना है, तो बोला सर हमारा जो आउटसाइड है वो कितना है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सिग्मा कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सो 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस मैं बोलूंगा ये कैसा आएगा बेटा, ये ऐसा ग्राफ आएगा, इनसाइड तो जीरो है बेटा, और यहां से ये ऐसा ग्राफ आएगा। इट मींस ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट बेटा वो है जहां मैक्सिमम है, इट मींस वो कौन सा पॉइंट है, सरफेस है, तो सरफेस के लिए r इक्वल्स टू r वाला पॉइंट है, और ये e कितना है यहाँ पे बेटा, इनसाइड जीरो है, इनसाइड e जीरो है और आउटसाइड ये, आपको ध्यान में रखना है, ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है। सो दीज आर द applications of Gauss law which are according to your NCERT book. See, I'm do like to discuss about a little bit about constant electric field, which we get by an infinitely charged seat. Discuss on constant electric field. अगर मैं बात करूं बेटा, ये सीट है इनफाइनाइटली चार्ज्ड है, कैसी सीट है, सिमेट्रिकली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट है, कैसी है, इनफाइनाइट सीट है, इधर भी इसका एक्सपांशन कितना है, इनफाइनाइट है ना। इसकी वजह से अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ई आता है वो आता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये क्या है, ई कांस्टेंट है, कैसा है,
कांस्टेंट। अच्छा, ई की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन है, तो अगर नेगेटिव होती है तो रेडियली इनवर्ड और पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। अगर सपोज करके बेटा हमारा जो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फोर्स की बात करते हैं तो सर फोर्स आता है हमारा QE। फोर्स क्या आता है बेटा? Q इंटू E। अगर मैं बात करूं कि फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मेरा E कांस्टेंट है तो Q, अगर किसी चार्ज की बात करता हूं तो F भी क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर गिवन चार्ज के लिए E कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर इस फील्ड में मैं एक मोशन करवाता हूं किसी चार्ज पार्टिकल को, तो उसका जो फोर्स होगा वो क्या हो गया? फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। फोर्स क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट हो गया, इट मींस F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। इट मींस F कांस्टेंट, इट मींस एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन 11th में आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। बात करें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपका G फिक्स होता था, अच्छा ना। और बात करें अगर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में तो उसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता था? कांस्टेंट होता था। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में पाथ के पार्टिकल की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं कि सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आई टोल्ड यू इन previous lecture that density of electric field lines represent field strength, density of electric field lines represent field strength। so मैं अगर कांस्टेंट की बात करता हूं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी बेटा? सिमेट्रिक होगी। इट मींस the constant electric field lines are represent like this, constant electric field lines are represented by like this। suppose अगर मैं बात करता हूं कि इस constant electric field line में अगर field constant है तो force भी constant होगा, it means acceleration constant होगा। और constant acceleration motion में अगर a आपका constant है तो there are two type of trajectory of this particle। बेटा पाथ, दो टाइप का पाथ हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? पैराबोलिक हो सकता है। स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, है ना। आपने पैराबोलिक पढ़ा होगा, किसमें आपने पैराबोलिक पढ़ा होगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन में। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब कब हो सकता है? तो स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है, स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है कि आपका u वेक्टर 0 हो, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपका 0 हो तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड केस आपका इनिशियल जो है वेलोसिटी वेक्टर जो है वो क्या हो? u जो है पैरेलल टू a वेक्टर और एंटी पैरेलल टू a वेक्टर। इट मींस आपका जो u जो है वो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में हो या उसके एंटी पैरेलल हो तो भी आपका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। रेस्ट ऑफ ऑल केसेस में आपका पाथ जो होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। आपका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। अगर मैं बात करता हूं इसी फील्ड में, मैं अलग अलग टाइप के चार्ज लेता हूं। मान लो कि अगर मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रॉन को मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी u से ऐसे एंटर करवाया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा बेटा? सॉरी, न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा बेटा? न्यूट्रॉन का Q0, तो Q0 तो F इक्वल्स टू क्या? QE, इट मींस फोर्स 0 और फोर्स 0 इट मींस एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका पाथ जो होगा बेटा वो अनडेविएटेड होगा, मतलब ये ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ना होके ये मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन ना होके मेरा क्या होता? ये इलेक्ट्रॉन होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोले तो सर नेगेटिव, तो फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस E इंटू E। It means the direction of force is opposite to the direction of electric field. It means the acceleration of electron will be F by me, F by mass of an electron, which is minus E by me into E. It means the acceleration vector is also opposite to the electric field, opposite to the electric field। अगर मैं इसको इस u इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो क्या है इसके देखो परपेंडिकुलर है, अगर ये पैरेलल होता तो ये रिटार्डेड होता तो ये वापस ऐसे जाके ऐसे आ जाता, बट मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर एंटर करवाया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगेगा तो इसका पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बेटा? ऐसा पाथ हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? ये ऐसा पाथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो आपसे बोला गया कि पार्टिकल ऑलवेज ट्राइज टू अचीव direction of acceleration vector, particle always tries to achieve the direction of acceleration vector। इट मींस आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑलवेज ट्राई करेगा कि उसकी डायरेक्शन को गेन कर ले। सी, अगर पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक इसकी डायरेक्शन को गेन कर लिया, एक्सेलरेशन वेक्टर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसके अपोजिट में कौन है? एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं यहाँ प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन कैसा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अगर ये ऐसा एंटर करता तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? ऐसा पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये सब चीजें जो आपने 11th में डिस्कस किया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन और ये सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप थोड़ा सा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ के आना, जो अपने 11th में आपने पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। थैंक यू।